नमस्कार। योगा पर्व अनुष्ठान में अभी मुंह का अभिनय और योगा की संबंध, हार्मनी, माइम एंड योगा, एक कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहा हूँ। आप अभी देखिए सूर्य प्रणाम हम शुरू कर रहे हैं। ऐसा हम लोग सूर्य प्रणाम से आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको योगा में मुंह का विनय जब आप कलाकार हम प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, उसमें आपको ब्रीदिंग मतलब प्राणायाम का बहुत महत्व है कि पूरा मूवमेंट जो है वो प्राणायाम से हम कंट्रोल करते हैं। तो कभी सांस को तेज लेने पड़ता है, कभी रुकने पड़ता है, कभी धीरे धीरे चालना करने पड़ता है। तो इसलिए व्हेन वी प्रैक्टिस ऑल दिस प्राणायामा, नाउ यू कैन प्रैक्टिस शो द प्राणायामा। यू स्टार्ट फ्रॉम भस्त्रिका, you can sit in the Padmasana or in Sukhasana. These are the Dhanasana. So Bhastrika, you take deep breathe in and breathe out. And in counting, you can count 8, 12, 16. अब देखिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, we take breathe in one nostril and the breathe out in the another nostril, and again we breathe in the same nostril and breathe out with the another. Then we practice the Kapalbhati. Kapalbhati is very important. This is the center of movement, the navel region, and that below the navel region there is the energy point. This is called Shaura. This is the source of energy. So Kapalbhati, we take breathe out and automatically it breathes. Okay, show this practice. So it will help you to gather energy in your nerves. ये बहुत अच्छे है आपका शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए। ये कपालभाति बहुत काम करता है। बहुत सारे प्राणायाम है। इसके बाद हम लोग आपको जो इम्पोर्टेंट और एक प्राणायाम है भ्रमरी, वो भ्रमरी करके दिखाएंगे। भ्रमरी में आपको जो ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन जो है ये यहाँ वाइब्रेट करते हैं और उससे आपका यहाँ का बहुत
जो 5 सेंस का नर्व्स है, और दूसरा जो नर्व्स है वो उसमें तेज होता है, तो इट हेल्प्स योर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली. After Bhramari, we do pronounce Om, 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 Om in different scales. So it helps for your dialogues, throwing in Mukha Abhinaya. It helps us to movements from one point to another point at these higher levels. So we practice this Om, and it's in Om you will find Om Saregama Padanisa. 7 notes जो है ये Om में है, तो हम Om भी प्रैक्टिस करते हैं. इसके बाद आपको प्राणायाम के बाद हम जब मुंह का अभिनय में और माइम में we have many exercises related with yogas. So we divide yoga asanas in every day in different times. In the morning you can practice Sarvangasana and Matsyasana. Sarvangasana, this all asanas functions because when they do it, Sarvangasana, it is the glands are there, pituitary glands and other जो hormonal glands है, here it works here. यहाँ आपको जो नर्व है, ग्लैंड्स है, ये सब आपको पावरफुल हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऊपर से नीचे तक आ जाता है. कभी कभी जो आते हैं आपको ध्यान रखना है कि ये सीधा रहेगा, ये पाँव जो है आँखों के साथ लेवल पे रहेगा, ठीक है. ये सीधा आपको बहुत सुंदर, हाँ सीधा आपको करेंगे. सर्वांगासन, इसके बाद मत्स्यासन. Matsyasan में you do Padmasana and lie down and you just bend your neck down. Show this Matsyasana, because in Sarvangasana there is a frontal bending and in Matsyasana it's the opposite one, backward one. So when you practice yoga asanas, always you try to do this. Okay? And after lunch or dinner, अब दोपहर का भोजन या रात की भोजन के बाद आपको वज्रासन में बैठना है. उससे खाना हजम होने का ठीक रहता है, खाना जल्दी हो जाता है. डाइजेस्ट helps the digest system. You can sit, you can comb your hairs, then you can resist your hair fall. So in this way, Vajrasana is this. And after
the bedtime you practice these. At the bedtime you practice Gomukhasana. Gomukhasana. In Vajrasana you can read books also. Gomukhasana also, if you don't use this, and by sitting this you can study. And this is the Gomukhasana, the first this leg, and change the other legs. दूसरा पाव भी आपको बदल करना है. It's called Gomukhasana. So therefore there are so many, बहुत योगा आसन है. उसमें से आपको सिलेक्ट करके हम जिसका जो पोस्चरल डिफेक्ट्स है वो हम उन सब कराते हैं बच्चों को. पोस्चरल डिफेक्ट्स उसका ठीक हो जाता है. तो टू करेक्ट योर पोस्चरल डिफेक्ट्स, जैसा पिजियन चेस्ट, सो इट विल हेल्प व्हेन यू डू इट. भुजंगासना और सर्पासना, द सेम वन. भुजंगासना, and it's called Bhujangasana or Sharpasana. So it helps your chest, to broaden your chest, and it helps to correct your defects. In this way, and there are so many, Halasana, Chakrasana, there are so many. Now they will show you the artistic yogas, how they, when they perform in different yogas, how to stretch their body parts, limbs, and और जब वो पाँव का स्ट्रेच करना है, all the stretchings, body को संकुचित करना और प्रसारण, संकुचित और प्रसारण करने का, और स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करने का, बेंड करने का, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, जितना है ये लोग आप एक के बाद एक करके दिखाएंगे. शुरू करो. इसको फिर आगे से दिखाइए, घुमा के, आप घूम जाइए, घुमा के इधर दिखाइए. পাটা লম্বা করে নে.
अब इतना समय आप देख रहे थे आर्टिस्टिक योगा। अब एक के बाद एक जो परफॉर्मेंस ये लोग करते हैं, आसनस जो है, ये शरीर को तैयार करने के लिए बहुत मदद मिलता है। हमारा सिलेबस में योगा और प्राणायाम ये अवश्य पाठ्य है। तो ये अभी आप जब आसन करेंगे तो हर आसन के बाद आपको शवासन में लेट के आपको विश्राम लेना है। तो अभी ये लोग आपको शवासन कैसे करना है वो दिखा रहे हैं। शवासन में दोनों पाँव सीधा रख के फिर आपको उसको गिरा देना है। हाथ को अपवर्ड रखना है, पाम को, और हेड सीट जो है एक साइड में वो ऑटोमेटिक गिर जाता है, गिरा देना है। और ये आप चेक करने के लिए रिलैक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये इसके लिए आपको पहले दाएं पाँव स्टिफ करिए, इसके बाद रिलैक्स कर दीजिए। बाएं पाँव स्टिफ करिए, रिलैक्स कर दीजिए। दाएं हाथ स्टिफ करिए, उसके बाद रिलैक्स करिए। बाएं हाथ स्टिफ करिए, रिलैक्स करिए। पूरा बॉडी को स्टिफ करिए, रिलैक्स करिए। नेक को स्टिफ करिए, रिलैक्स करिए। इसके बाद हेड को आप गिरा दीजिए। ऐसा तो पूरा रिलैक्सेशन आपको कभी होता नहीं है। अब जब मर जाएंगे डेड बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन होता है। सुतरां आप चिंता मत करिए, बॉडी में कहाँ ना कहाँ पर भी थोड़ा सा भी एनर्जी आपको मौजूद रहेगा। धन्यवाद। इसके बाद हम अभी दिखाएंगे कि ये जो सारी चीज़ हम योगा के इतना जो है ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हाँ, तो ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ज़रूरत क्या है जीवन में आपको सुस्त रहने के लिए, स्वाभाविक रहने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए, ये आसन और प्राणायाम आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर कलाकार करते हैं। हमारा माइम मुंह का अभिनय जो करते हैं, माइम करते हैं, वी आर प्रैक्टिस योगा एवरी डे। अभी हम लोग आपको एक मुंह का अभिनय प्रदर्शन करके दिखाएंगे। विल सी ये माइम परफॉर्मेंस एंड एंजॉय।
नमस्कार। आप इतना देर तक मूक अभिनय परफॉर्मेंस देख रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा। यू हैव एंजॉयड आवर माइम परफॉर्मेंस। सो वी आर ग्रेटफुल टू द संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली। हम लोग आभारी है संगीत नाटक अकेडमी नया दिल्ली की प्रति, जो हमें ये मौका दिए है आपके सामने योगा पर्व, जो वर्ल्ड योगा डे की साथ जुड़े हुए संबंध में ये परफॉर्मेंस करने का, और हम लोग जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, वो सब आपके सामने दिखाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।